صدارتی انتخابات میں بی جے پی کی قیادت والی این ڈی اے اتحاد کے امیدوار کے نام پر غور و خوض کے لیے بی جے پی کے صدر دفتر میں پارٹی کی پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کے بعد جے پی نڈا نے اعلان کیا کہ جھارکھنڈ کی سابق گورنر دروپدی مرمو این ڈی اے کی جانب سے صدر کے عہدے کی امیدوار ہوں گی۔ نڈا نے بتایا کہ پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ میں تقریباً 20 ناموں پر تبادلہ خیال کیا گیا اور آدیواسی خاتون لیڈر مرمو کے نام پر مہر لگی۔ قابل ذکر ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی، بی جے پی صدر جے پی نڈا، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، ٹرانسپورٹ کے مرکزی وزیر نتن گڈکری اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان سمیت پارلیمانی بورڈ کے دیگر اراکین میٹنگ میں موجود تھے۔ اسرائیل 3.5 سال میں اپنے 5ویں انتخابات کی طرف بڑھ گیا ہے۔ دراصل اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ اور متبادل وزیر اعظم یائر لیپڈ کے اتحاد کو مستحکم کرنے کی کوششوں سے دستبردار ہونے کے بعد نئے انتخابات کی صورتحال پیدا ہوئے ہیں۔ ایک مشترکہ بیان میں بینٹ اور لیپڈ نے کہا کہ وہ کینیسٹ یا پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے لیے اگلے پیر کو ووٹنگ کے لیے ایک بل لائیں گے، یعنی اکتوبر میں انتخابات ہونے کا امکان ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ اسرائیل 3.5 سال میں 5ویں پارلیمانی انتخابات کی طرف بڑھ گیا ہے۔ دراصل اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ اور وزیر خارجہ یائر لیپڈ نے پارلیمان کو تحلیل کر کے قبل از وقت انتخابات کرانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس دوران وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری لیپڈ نبھائیں گے، وہ عبوری حکومت کے سربراہ ہوں گے۔ اس معاملے پر اسرائیلی پارلیمان میں ووٹنگ آئندہ ہفتے منعقد کرائی جائے گی۔ گزشتہ 3 برسوں کے اندر ملک میں یہ 5ویں عام انتخابات ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ملک میں ایک بار پھر سابق وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کی اقتدار میں واپسی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے، جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں، یا پھر ایک اور طویل سیاسی تعطل پیدا ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کے دفتر نے قوم سے خطاب میں کہا کہ حکومت ختم کرنے کا فیصلہ آسان نہیں تھا، تاہم انہوں نے اس فیصلے کو اسرائیل کے لیے درست قرار دیا۔ ידידי שר החוץ יאיר לפיד ואני החלטנו לפעול יחד לפיזור הכנסת۔ وزیر خارجہ یائر لیپڈ اور میں نے مل کر کام کرنے، کینیسٹ کو تحلیل کرنے اور ایک طے شدہ وقت پر انتخاب کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور ایک منظم طریقے سے اقتدار کی منتقلی اور ریاست کے قومی مفاد کو یقینی بنایا ہے۔ ہم نے وہ سب کچھ کیا جو اس حکومت کو بچانے کے لیے کیا جا سکتا تھا، جو کہ ہماری نظر میں اس کا برقرار رہنا قومی مفاد میں تھا۔ آنے والے دنوں میں جب تک کینیسٹ تحلیل نہیں ہو جاتی، میں ایک منظم منتقلی کے ذریعے اس کی مدد کروں گا تاکہ ریاست چلتی رہے۔ לא לכבודנו עשינו את זה, אלא לכבודה של הארץ היפה שלנו, לכבודכם אזרחי מדינת ישראל۔ اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں بات یہاں تک آخر کیسے پہنچی۔ یائر لیپڈ اور بینٹ نے 8 جماعتوں کے ساتھ مل کر جون 2021 میں مخلوط حکومت تشکیل دی تھی، جس کی وجہ سے 2 برس سے جاری سیاسی تعطل کا خاتمہ ہوا تھا، کیونکہ اس دوران بنجمن نتن یاہو بار بار ایک نئی حکومت بنانے میں ناکام ہو چکے تھے۔ یہ نیا اتحاد دائیں بازو، لبرل اور عرب مسلم جماعتوں پر مشتمل تھا، تاہم ان میں کئی اہم مسائل کے حوالے سے کافی شدید نظریاتی اختلافات بھی تھے۔ بعض منحرف ارکان کی وجہ سے یہ اتحاد پارلیمان میں اپنی اکثریت سے محروم ہو گیا۔ اپریل میں اس اتحاد نے 120 نشستوں والی پارلیمنٹ میں اس وقت اپنی اکثریت کھو دی جب بینٹ کی دائیں بازو کی یامینا پارٹی کے ایک رکن ادیت سلمین نے علیحدگی کا اعلان کیا۔ حالیہ ہفتوں میں انحراف اور بغاوتوں نے بینٹ اتحاد کو قانون سازی کی اہلیت سے محروم کر دیا تھا، جس کے بعد سے بینٹ اس اتحاد میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے کافی جدوجہد کر رہے تھے۔ اس اتحاد میں شامل 2 سرکردہ شراکت داروں نے ایک بیان جاری کیا جس میں اتحاد کو مستحکم کرنے کی تمام کوششوں کا ذکر کیا گیا، جس کے بعد ہی وزیر اعظم نفتالی بینٹ اور یائر لیپڈ نے اگلے ہفتے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا بل پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ זהו ערב של בשורה גדולה למיליוני אזרחים בישראל۔ اسرائیل کے شہریوں کے لیے یہ ایک بڑی خوشخبری ہے۔ حزب اختلاف کی پرعزم جدوجہد کے بعد یہ بات سب پر آیا ہے کہ ملک کی تاریخ کی سب سے ناکام حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے، ایک ایسی حکومت جو دہشت گردی کے حامیوں پر منحصر تھی، جس نے اسرائیل کے شہریوں کی ذاتی حفاظت کو ترک کر دیا تھا، جس نے غیر ضروری ٹیکس عائد کیے، جس نے ہمارے ملک کے یہودی کردار کو خطرے میں ڈال دیا۔ میں اور میرے دوست لیکوڈ کے سربراہی میں ایک وسیع قومی حکومت بنائیں گے، ایسی حکومت جو آپ کی دیکھ بھال کرے گی۔ ממשלה לאומית רחבה בראשות הליכוד,
ממשלה שתדאג לכם, לכל אזרחי ישראל, בלי יוצא מן הכלל. ये वसी इत्तेहाद काफ़ी अरसे से हुक्मरानी करने वाले साबिक वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को इक़्तिदार से हटाने के लिए तश्कील दिया गया था, जो अब अपोजिशन लीडर हैं। कई दौर के इंतखाबात में नेतन्याहू का इत्तेहाद सबसे बड़ा सियासी ग्रुप बनकर उभरा, ताहम उसे अक्सरियत हासिल नहीं हुई थी। इसी वजह से तमाम कोशिशों के बावजूद नेतन्याहू हुकूमत साजी में नाकाम रहे थे। अब इसराइल में गुज़श्ता 3 बरसों में मुल्क के 5वें इंतखाबात की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जिसके आइंदा अक्टूबर या नवंबर में होने की तवक्को है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रूसी अफवाज ने मशरक़ी यूक्रेन के दोनबास के इलाके में अपनी पेशकदमी में मज़ीद तेज़ी लाई है। रूसी फ़ौज ने स्वेरोडोनेत्स्क के इलाके के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले और गोलाबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि ये इलाके एक मुश्किल तरीन लड़ाई का सामना कर रहे हैं। स्वेरोडोनेत्स्क ज़िलाई फ़ौजी इंतज़ामिया के सरबराह ने कहा कि तोश्किवका की बस्ती अब मुकम्मल तौर पर रूसियों के कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि रूसी अफवाज स्वेरोडोनेत्स्क के सनती हिस्से में दाखिल हो गई है, जहां एक अंदाजे के मुताबिक 500 शहरी अज़ूट केमिकल प्लांट में पनाह लिए हुए हैं। डोनबास में जारी लड़ाई हालिया हफ्तों में एक वहशियाना शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसमें मॉस्को ने हथियारों से मज़ीद अपनी अफवाज को यूक्रेन के इलाकों में तैनात कर दिया है। बावजूद इसके कुछ मुबस्सरीन ने नोट किया कि रूसी अफवाज ने जारहाना कार्रवाई के बावजूद डोनबास में सुस्त पेशरफ्त की है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने यूक्रेनी हुकाम का हवाला देते हुए कहा कि आने वाला हफ्ता स्वेरोडोनेत्स्क पर कब्जा करने की रूसी कोशिशों के लिए फैसला कुन साबित होगा। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि मई के वस्त में मॉस्को की जानिब से शहर और इलाके से अपनी अफवाज के इनखला के बाद रूस खार्किव पर नए सिरे से हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। Зараз армія Росії намагається зібрати сили. अब रूसी फौज खार्किव पर दोबारा हमला करने के लिए फौजें जमा करने की कोशिश कर रही हैं। हमने इस खित्ते पर कब्जा कर लिया है और वो इसे दोबारा हासिल करना चाहते हैं। बिलाशुबा हम काबजीन को रोकने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन इसे तेज तर करने के लिए हमें सपोर्ट और जदीद हथियारों की ज़रूरत है, जो रूसी फ़ौज के हथियारों से बेहतर सलाहियत के हामिल हों। यही वजह है कि मैं अपने तमाम शराकतदारों को ताकतवर हथियार देने पर राज़ी करने के लिए बहुत ज़्यादा जज्बात, वक्त और मेहनत खर्च करता हूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी का मामला है। Потенціал більший, ніж у російській армії. रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान इगोर कोनाशनिकोव ने कहा कि यूक्रेनी फ़ौज ने स्नेक आइलैंड पर कब्जे के लिए ऑपरेशन किया था, लेकिन रूसी फ़ौज ने हमला पसपा कर दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी फ़ौज फ़ज़ा से और तोप हमले करने के बाद जजीरे पर रेड का प्रोग्राम रखती थी, लेकिन रूसी फ़ौज ने हमला पसपा कर दिया और उसके बाद यूक्रेनी फ़ौज ने रेड का इरादा मुलतवी कर दिया। उन्होंने कहा कि रूसी अफवाज यूक्रेन की फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाना जारी रखे हुए हैं। खार्किव के इलाके में रूस ने यूक्रेन फ़ज़ाइये का Su-25 जंगी तैयारा मार गिराया है। यूक्रेन के नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि जंग के आगाज़ से लेकर अब तक 12 लाख यूक्रेनी शहरियों को ज़बरदस्ती रूस ले जाया गया है, जिनमें 2,40,000 बच्चे हैं। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि ये तादाद मॉस्को के फराहम करदा आदादोशुमार से मुख्तलिफ है। मॉस्को का दावा है कि 20 लाख अफराद को रूसी इलाके में मुंतकिल किया गया है। Даними. І вона дещо відрізняється від тієї, що надала російська сторона, але ви розумієте, російська сторона ніколи не говорить правди і в даному випадку теж не збиралася цього робити. Вони говорять про майже 2 мільйони. Наші дані нашої розвідки говорять про те, що це приблизно 1,2 мільйона осіб, хоча це теж велике число, і ми розуміємо, що за них треба буде боротися, з них 240 тисяч дітей. Я вже रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस मुमकिना फौजी खतरात और रिस्क को मद्देनजर रखते हुए अपनी फौज को मजबूत करेगा। रूसी सदर ने इन ख्यालात का इजहार मॉस्को में फौजी ग्रेजुएट से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तरजीही शोबों में फौजियों को नए हथियारों के निज़ाम से लैस करना है, जो आने वाले सालों में फौज और बहरिया की जंग तासीर का तयन करेगा। पुतिन ने जोर दिया कि रूसी फौजियों ने पहले ही S-500 तैयारा शिकन और
اینٹی بیلسٹک میزائل دفاعی نظم حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلا سرمٹ بین البرعظما بیلسٹک میزائل سسٹم 2022 کے آخر تک روس میں جنگی ڈیوٹی پر لگایا جائے گا۔ Сегодняшние офицеры и солдаты России – наследники поколения победителей. روس کے افسران اور سپاہی مادر وطن کے لیے بے لوث لڑتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کے لیے وہ شام میں بین الاقوامی دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہیں، ڈونباس کا دفاع کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ خصوصی فوجی آپریشن کے دوران ہمارے جنگجو حقیقی ہیروز کی طرح بہادری پیشہ ورانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ ہم ممکنہ فوجی خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی مسلح افواج کو مضبوط کرنا جاری رکھیں گے اور ان کی جنگی طاقت کو بہتر بنائیں گے۔ ترجیحی شعبوں میں فوجیوں کو نئے ہتھیاروں کے نظام سے لیس کرنا ہے جو آنے والے سالوں میں فوج اور بحریہ کی جنگی تاثیر کا تعین کرے گا۔ Имеющие аналогов в мире комплексы против... نوبل انعام یافتہ روسی صحافی دمتری موراتوف نے جنگ کے باعث بے گھر ہو جانے والے پناہ گزین یوکرینی بچوں کی مدد کے لیے اپنا میڈل 10 کروڑ 45 لاکھ ڈالر میں نیلام کر دیا۔ پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر نیو یارک میں نیلامی کا اہتمام کرنے والے ادارے ہیریٹیج آکشن کی جانب سے کہا گیا کہ اس نیلامی سے حاصل ہونے والی تمام رقم یوکرین کے بے گھر بچوں کے لیے یونیسیف کے انسانی ہمدردی کے اقدامات کو فائدہ پہنچائے گی۔ نوایا گیزٹا اخبار کے چیف ایڈیٹر دمتری کے نوبل میڈل کی نیلامی نے ماضی میں نیلام کیے گئے کسی بھی نوبل میڈل کی فروخت کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اس سے قبل نیلام کیے گئے نوبل میڈلز کی زیادہ سے زیادہ رقم 50 لاکھ ڈالر سے بھی کم تھی۔ دمتری نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اس سے لاکھوں یوکرینی پناہ گزینوں کی زندگیوں پر مثبت اثر پڑے گا۔ فن لینڈ کے صدر نے منگل کو کہا کہ فن لینڈ اور ترکی کے درمیان نیٹو کی رکنیت کے حوالے سے بات چیت شروع ہو گئی ہے، لیکن اس ماہ کے آخر میں میڈرڈ میں ہونے والے نیٹو سربراہی اجلاس میں کسی معاہدے پر پہنچنا مشکل ہوگا۔ فن لینڈ کے شہر نانتالی میں یورپی پارلیمنٹ کے صدر کے ساتھ بات کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ گزشتہ روز برسلز میں ترکی کے ساتھ مذاکرات کے پہلے دور کے دوران بہت کم پیش رفت ہوئی، تاہم مذاکرات بالآخر کامیاب ہوں گے، لیکن یہ کب ہو سکتا ہے اس کا تعین مشکل ہے۔ Actually, that was a progress to have a possibility of meeting together. That took quite a lot of time, but nevertheless the negotiations are now open and they have also agreed that they will continue. And even though in substance itself there was not that much progress, but surely we have to be satisfied that the discussion is now opened. And well, everybody is looking now for Madrid and a timetable for Madrid. That might be quite difficult to get agreements by that, but nevertheless my impression is that serious discussions are going on, and hopefully all of us are at the end heading to a positive result. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد ہوں گے حاضر۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 12... ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बरतानिया में गुज़िश्ता 30 बरस के दौरान की सबसे बड़ी रेलवे हड़ताल शुरू हो गई है। लगभग 40,000 रेलवे वर्कर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिससे मुल्क में एक नए बहरान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। माहिरीन इसे बरतानवी रेलवे की 30 बरस में सबसे बड़ी हड़ताल करार दे रहे हैं। हड़ताल की वजह से मुल्क भर में रेलवे मफलूज, ट्रैफिक तकरीबन मफलूज होकर रह गया है। देखिए रिपोर्ट। बरतानिया में तनख्वाहों में इजाफे और बरतरफियों के खिलाफ लगभग 40,000 रेलवे वर्कर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिससे मुल्क में एक नए बहरान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। माहिरीन इसे बरतानवी रेलवे की 30 बरस में सबसे बड़ी हड़ताल करार दे रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक रेलवे यूनियंस ने ऐलान किया है कि मंगल, जुमरात और हफ्ते के रोज काम छोड़ हड़ताल की जाएगी, जिसमें 40,000 रेलवे वर्कर्स मुतालबात के हक में एहतजाज करेंगे। हड़ताल के पेश नज़र बरतानिया की सड़कों पर ट्रैफिक जाम के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, जबकि हड़ताल की वजह से लाखों अफराद मुतासिर होंगे। हड़ताल की वजह से लंदन में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन नेटवर्क भी जुज़वी तौर पर बंद रहेगा, जबकि हवाई अड्डों पर भी स्टाफ की कमी की वजह से लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं और पासपोर्ट दफातर में अमले की कमी की वजह से शहरियों को पासपोर्ट के हुसूल में भी ताखीर का सामना है। यह हड़ताल ऐसे वक्त में की जा रही है जब बढ़ती हुई महंगाई की वजह से बरतानवी मईशत दबाव का शिकार है और वजीर आजम बोरिस जॉनसन पर मौसर इक़दामात करने के लिए मुसलसल दबाव बढ़ रहा है। हुकूमत का दावा है कि वो पहले ही कई लाख कम आमदनी वाले घरानों की माली मुआवनत कर रही है। ऐसे में महंगाई की शरह से भी ज्यादा तनख्वाहों में इजाफा माशियात के बुनियादी उसूल की नफी होगा। वजीर आजम जॉनसन ने इस खदशे का इजहार किया है कि अगर मुल्क में इसी तरह इंडस्ट्रियल एक्शन का सिलसिला शुरू हो गया तो कोरोना वबा के असर से निकलने की कोशिश को धचका लगेगा। वर्कर्स यूनियंस ने दावा किया है कि रेलवे वर्कर्स का एहतजाज नुक्ते आगाज होगा। असातिज़ा, तिब्बी आमला, वोकला, वेस्ट मैनेजमेंट का आमला और दीगर शोबे भी हड़ताल पर जा सकते हैं। जॉनसन का कहना है कि यूनियन की हड़ताल की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यूनियंस का यह दावा रहा है कि वो लोगों की मदद करते हैं। अपोजिशन जमातें हुकूमत पर तनकीद कर रही हैं कि वो मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकालने में नाकाम रही है। इधर बरतानिया में पेट्रोलियम मसनूआत और अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि अफराते ज़र की शरह 10% तक पहुँच चुकी है। रेलवे वर्कर्स की हड़ताल ऐसे मौके पर हो रही है जब कोरोना वबा की वजह से सप्लाई चेन में ताअत्तुल, लेबर की कमी, महंगाई और ब्रेग्जिट के असरात की वजह से कसाद बाजारी के खदशात नुमाया हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सऊदी अरब के वली अहद, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 3 मुल्कों के सरकारी दौरे के पहले मरहले में मिस्र पहुंच गए। काहिरा पहुंचने पर मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह असीसी ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खैर मकदम किया। इस दौरान सऊदी अरब और मिस्र ने $7.7 अरब मालियत के 14 मुआहदों और समझौतों पर दस्तखत किए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान काबिल तजदीद तवन्नाई के मजीद मुआहदों के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत, खुराक और फनटेक के शोबे से मुतल्लिक़ समझौते भी तय पाए हैं। काबिल ज़िक्र है कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मिस्र के दौरे के बाद उर्दन और तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो दोनों ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। चीन ने अमेरिका की जानिब से युगोर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट के निफाज की कड़ी नुक्ताचीनी की है। चीन का कहना है कि इस कानून से अमेरिका चीन के
ज़ेनजियांग सूबे से दरामदात पर वसी पैमाने पर पाबंदी आयद करेगा। चीन ने इस कानून को कशीदगी और तलखी में शिद्दत लाने पर ताबीर किया है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने इल्ज़ाम लगाया कि अमरीका झूठ पर मबनी कानून को फ़रोग दे रहा है, जिसका मकसद ज़ेनजियांग में जबरी बेरोजगारी पैदा करना और चीन के साथ ताल्लुकात को ख़त्म करना है। वाज़ेह कि अमरीका का इल्ज़ाम है कि ज़ेनजियांग से आने वाली अशिया जबरी मशक्क़त से बनाई जाती है, जिसकी रोकथाम के लिए अमरीका ने यह कानून बनाया है। 美方以谎言为依据，制定并实施维吾尔强迫劳动预防法，对新疆有关实体和个人进行制裁，是谎言的继续，也是美方打着人权幌子对华进行打压的升级。 更是美国肆意破坏国际经贸规则，损害国际产业链供应链稳定的实证。美方试图以所谓的法律形式，在新疆制造强迫失业，在全球推行同中国脱钩，这充分暴露了美国打着人权的旗号。 वस्ती माली के देहातों में गुज़िश्ता हफ्ते को होने वाले दहशतगर्दाना हमलों में 132 अफराद हलाक हो चुके हैं। सरकारी ज़राए का कहना है कि बेंकॉस कस्बे में मुल्हिका देहातों पर 18 जून को मकरब अलकायदा से वाबस्ता कातबी नामी दहशतगर्द तंजीम हमले किए हैं। इन हमलों में 132 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसकी हुकूमत ने शदीद मजम्मत करते हुए जिम्मेदारों की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। हुकूमत ने मुल्क भर में 3 रोज़ा सो का भी ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि अलकायदा और दाइश से वाबस्ता गिरोह बुर्किना फासो, नाइजीरिया और माली के मुश्तरका सरहदी इलाकों में मुसलसल हमले करते रहे हैं। जनूबी कोरिया ने अपना पहला घरेलू खलाई रॉकेट मंगल को लॉन्च किया। 3 मरहलों पर मुश्तमिल नूरी रॉकेट को जनूबी साहिल से दूर एक छोटे से जजीरे पर जनूबी कोरिया के वाहिद खलाई लॉन्च सेंटर से धमाके से उड़ाया गया। अगर ये लॉन्च कामयाब हो जाता तो जनूबी कोरिया अपनी टेक्नोलॉजी के साथ सैटेलाइट को खला में भेजने वाला दुनिया का 10वां मुल्क बन जाएगा। बांग्लादेश सैलाब की वजह से भारी तबाही आई है, लाखों को बेघर हो गए हैं। अब तक 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई है। बेशुमार लोग ऊंचे मकामात पे पनाह लिए हुए हैं। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने सैलाब से हुई तबाही का फ़ज़ाई मुआयना किया और इमदादी कामों का जायजा भी लिया। हर साल की तरह इस साल भी बांग्लादेश के लोग सैलाब की तबाहियों को झेल रहे हैं, मगर फर्क इतना है कि बरसों के बाद सैलाब की वजह से इतनी भयानक और संगीन सूरत हाल पैदा हुई है। ताहद नजर पानी ही पानी है। बांग्लादेश के सैलाब की वार्निंग सेंटर ने मंगल को कहा कि शिमाली मशरकी इलाके में अगले 5 दिनों तक पानी की सतह बुलंद रहेगी, क्योंकि हुक्काम इन लाखों लोगों को खुराक और पानी फराहम करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जो कई दिनों की शदीद बारिश और सैलाब के बाद बेघर हो गए हैं। तो ये যাবৎকালের মানে সবচেয়ে বড় বন্যা মনে হচ্ছে আমার কাছে। আমাদের এলাকার যে আপনার ঘর বাড়ি সব একবারে পানি বুড়ে গেছিল, পানির নিচে গেছিল। আমাদের ঘরের যে ফার্নিচারের দোকানে সব মাল নিয়ে গেছে। আমরা তো আপনার বাড়িতে ছিলাম, এই মাল আর খেতে পারিনি। বাড়ি বাঁচাইবো না ঘর বাঁচাইবো, তো সব মিলে আমাদের মানে ফার্নিচারের দোকানে সব মাল নিয়ে গেছে বন্যায়। এখন মানে কিছু পয়সা কিছু নিয়ে গেছে। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने सैलाब से मुतासरा इलाके की फजाई सर्वे में शिरकत की और इनखला और इमदादी इक़दामात का जायजा लिया। मानसून की बारिश से आने वाले सैलाब में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद हलाक और लाखों मुतासर हुए। शिमाल मशरक़ी बांग्लादेश के सिलहिट में दरिया सुरमा के किनारे देहाती घुटनों तक सैलाब में डूबकर गलियों में घूम रहे थे। बहुत से लोग अपने घर छोड़कर आसपास की ऊंची जमीन पर चले गए और कई घर नशेबी इलाकों में ज़ेरे आब है। बांग्लादेश ज्यादातर हमवार और नशेबी इलाकों में आबाद है, इसलिए मानसून के मौसम में मुख्तसर मुद्दत के सैलाब आना आम सी बात है। लेकिन हर साल तबाहकुन सैलाब से मुल्क के बुनियादी ढांचे और मईशत को नुकसान पहुँचता है। आलमी बैंक के मुताबिक मुल्क के 160 मिलियन अफराद में से तकरीबन 28% साहिली इलाकों में रहते हैं। पिछले महीने भारत की शिमाल मशरक़ी रियासतों में ऊपर की तरफ आने वाले पानी की वजह से मानसून से पहले का सैलाब आया।
जिस ने बांग्लादेश के शिमाल और शिमाल मशरकी इलाकों को निशाना बनाया, जिससे फसलें तबाह हुई और घरों और सड़कों को नुकसान पहुंचा। साइंसदानों का कहना है कि बांग्लादेश में मौसमियाती तब्दीलियों से सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हुई है। मौसमियाती तब्दीली के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल हुकूमती पैनल के मुताबिक अगर आलमी हिद्दत की मौजूदा शरह यूं ही बरकरार रहती है, तकरीबन 17% आबादी को अगली दहाई या इसके दौरान नक़ल मकानी करने की ज़रूरत होगी। जनूबी एशिया में मानसून की बारिश आम तौर पर जून में शुरू होती है, लेकिन इस साल मार्च में शिमाल मशरक़ी हिंदुस्तान और बांग्लादेश में शदीद बारिश हुई, जिससे बांग्लादेश में अप्रैल के शुरू में सैलाब आया और लोगों को अपनी चपेट में लिया। सैलाब से तबाही का अंदाजा तो अभी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि फिलहाल लोग जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और हुकूमत इमदादी कामों में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।